Hello students. Today I shall introduce you your new friend Rahul. Rahul is a student of class 5th just like you. He loves to talk with his father because his father has great knowledge about everything around him. He goes on outings with his father every weekend and his father takes him to different tourist places, zoos, national parks, and also his father takes him for shopping. Once he went with his father to a national park and he saw many animals in the jungle. The animals were moving there fearlessly. His father told him about the way government is protecting the wildlife and forest of our country. He was very excited and thrilled to see the lion in the jungle walking majestically. He never forget that memory. Last Sunday, his father took him to a zoo where he saw most of the animals he had already seen in the jungle when he visited Gir National Park. Here, he was very sad to see the animals and birds kept in the cages. When he saw birds in the cages, he wondered if any human being is kept in cage. He was frightened to imagine himself locked inside a cage. He told his father about his thought. His father laughed and said, "You have right to freedom. You cannot be caged like that." Rahul now became very curious and looked at his father for further information about right to freedom. His father started explaining him about our fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. Like Rahul, you too are so lovely child and always obey your parents. If your routine is classified in two categories, into two divisions, rights and duties, you will come to know about this. His father told him that your rights are you must get healthy food, you must get opportunity to study, you must get opportunity to play games and become stronger and healthier. You must get freedom to move in any part of your home, in your colony, in your village or town, and so on. You must get freedom to speak about your desires, what you want, what you don't want. You should get this freedom and this is your right. तो ये सारे जो हैं आपके rights हैं और duties. You should maintain cleanliness wherever you go. You should study regularly. You should not quarrel. You should not harm any public property. We should save water. We should not waste water. You should not speak ill words or abusing language. So these are the things you should do. आपको करना चाहिए और इसलिए जो चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आपको करना चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छे बच्चे होने के लिए और बड़ों के लिए भी, जो भी अच्छे इंसान होते हैं उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए. और इसके अलावा भी कुछ और ड्यूटीज़ हैं, कुछ और राइट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, with reference to this story of Rahul, we shall study our new chapter, Fundamental Rights and Duties. तो हम राइट्स और ड्यूटीज़ इन दो चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर एनलिस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दे आर बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन. They guarantee civil liberties for enabling all Indians to live in peace and harmony. They are independent of age, gender, caste, creed, and religion. They can be freely exercised by all the citizens of India. In the third part of our constitution, fundamental rights are enlisted. Enlisted means they are written, and they are basic rights. Basic rights we consider that those rights are basic freedoms that we must have. We must have all these liberties, civil liberties. As I told you, we can move about in any part of our country. We can live in any state. We can go for any job. We can do any service. Your parents can make house in any of the colony, any of the city. So there are some civil liberties that have been given to us, and they make us capable to live in this country with peace and harmony.
we maintain peace and harmony, we'll live happily and harmoniously without quarreling, without having any dispute with anybody. So this way our constitution guarantees these fundamental rights. ये फंडामेंटल राइट्स किसी भी एज के, इंडिपेंडेंट ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हमारी एज कुछ भी हो, जेंडर कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, या कास्ट कोई सी भी हो, हमारा कोई सा भी हम कम्युनिटी के फॉलोअर्स हों, हमारा कोई सा भी संप्रदाय हो, कोई सा भी पंथ हो, या हमारा कोई सा भी धर्म हो, दे कैन बी फ्रीली एक्सरसाइज्ड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कहीं भी कोई भी सिटीजन उन सभी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, अपने जीवन में उन राइट्स का यूज़ करते हुए ज़िंदगी जी सकता है। वायोलेशन ऑफ दीज राइट्स रिजल्ट्स इन पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पेनल कोड IPC। अगर कोई वायोलेट करता है, तोड़ता है उन अधिकारों को, हमारे छीन लेता है या छीनने की कोशिश करता है, या हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको कोई किसी व्यक्ति को बंधन में बांध लेता है, बांधने की कोशिश करता है, कैद करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर IPC की कोड में, IPC मतलब हमारे संविधान ने IPC की भी गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसमें सज़ा किसको कितनी दी जाएगी, अगर कोई क्राइम कुछ करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको कितनी सज़ा, कैसे सज़ा दी जाएगी, ये IPC में मेंशन किया हुआ है। दीज राइट्स प्रोटेक्ट people from foreign countries also who are eligible to be treated equally before law। और ये जो राइट्स हैं ये विदेश से भारत में आके जो बसे हुए उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, उन लोगों को भी ऐसी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर मिलते हैं। इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल एग्रेशन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ देम। अगर मान लो भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, तब कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर ज़्यादातर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। हमको आने जाने की तो आज़ादी होती है एग्जाम्पल के लिए, या किसी पार्ट में आने जाने की आज़ादी रोक भी दी जा सकती है। जैसे अगर भारत का किसी पड़ोसी के साथ में युद्ध हो जाता है तो उस एरिया में लोगों का मूवमेंट जो है वो रोक दिया जाता है। इसी के साथ अगर मान लीजिए कोई अटैक होता है तो हमारे यहाँ मीडिया पर भी कंट्रोल हो जाता है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती, हम कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं दे सकते, या समय समय पर एक्सपीरियंस करते हैं। दिस हेल्प्स इन मॉनिटरिंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। तो इस तरीके से हम फ्रीडम भी एंजॉय करते हैं और मौका पड़ने पर हम सोशली कंट्रोल्ड भी हो जाते हैं, मतलब हमारे समाज को या लोगों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेट अस मूव अहेड टू फाइंड आउट व्हाट आर द different fundamental rights. So we can see here 6 fundamental rights have been given here for you to study. All the citizens are equal before law. There is no discrimination on the grounds of religion, race, caste or place of birth. भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब इक्वल हैं, कानून के लिए सभी इक्वल हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बहुत गरीब इंसान है, बेरोज़गार भी है, या वो किसान है, या वो मज़दूर है, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, सभी के लिए कानून एक जैसा है। इसलिए ये बात कही जाती है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, पक्षपात। अमीर है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, गरीब है तो उसको नुकसान हो जाएगा, या किसी रिलीजन का है, या किसी रेस का है, या किसी कास्ट या जेंडर का है, मेल है, फीमेल है, कोई भी हो, हर किसी के लिए सभी कानून समान है। ऑल इंडियंस आर ट्रीटेड इक्वली बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड लॉ। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हर कहीं सभी फील्ड्स में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, फार्मिंग में, सभी जगह ये सारे कानून लागू होते हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, हर बिजनेस में, हर शहर में। द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ST, SC एंड ST,
and other backward classes OBC are provided equalities of status by the law. और कुछ वीकर सेक्शन हैं जो कमज़ोर हैं, जो गरीब रह गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया गया है, उनकी कम्युनिटी को, उनके समाज के लोगों को अलग से कैटेगराइज किया गया है एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं और जो बैकवर्ड या लोअर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट में कहा जाता है। और यहाँ पर इसी के साथ में बैकवर्ड क्लासेस जो है इकोनॉमिकली जो बहुत गरीब रह गए हैं, उन लोगों को ओबीसी और एससी और एसटी की कैटेगरी में लिया गया है ताकि उनको स्पेशल प्रिविलेजेस या विशेष मदद से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई जा सके। तो लेट अस सी हियर नेक्स्ट राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। दो तरीके के राइट होते हैं, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पहले हम राइट टू फ्रीडम को समझ लें। इसमें राइट टू फ्रीडम में रिलीजन वाली कहीं पर भी बात नहीं है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे, उस समय आप देखेंगे। डेमोक्रेसी इज सिनोनिमस विद फ्रीडम। फ्रीडम सबसे बढ़िया जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो होता है डेमोक्रेसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फॉलोइंग फ्रीडम्स। कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं राइट टू फ्रीडम में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी कैन express our opinion, we can say anything, we can criticize government also, and we can speak what we desire to speak. This is called freedom of speech and expression. Freedom to form unions, we can make any group, any association, any community we can make. So this way freedom to form union. Then freedom of speech and expression, freedom to form unions. नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री। कंट्री में कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आप कभी भी घूमने जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो ये फ्रीडम हमको मिली हुई है। वी ट्रैवल, वी गो फॉर टूर, एजुकेशनल टूर ऑल्सो विद स्कूल, you go with your family, you go and you can settle in any part of the country also. This is what it says, freedom to reside anywhere in the country. किसी भी पार्ट में कंट्री के यू कैन रिसाइड, यू कैन लिव, यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड। लाइकवाइज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू you can practice that profession. Either you can run a business or you can do any job or service, you can join any private company or you can go for any government services also. So this is what is considered under right to freedom. So speech and expression, first freedom to form unions, second, third, movement in the country, anywhere we can move, fourth, we can reside anywhere in the country, and fifth, we can practice any profession, we can do any business. We must exercise our right to freedom very carefully. Our freedom must not cause disturbance or problems to others. Our speech must not hurt anyone. पहली बात हमने जो इसमें देखी थी कि हमारी जो स्पीच है एक्सप्रेशन की, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात कहना जिससे किसी को दुख हो या किसी को गुस्सा आ जाए, इस टाइप से हमको बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया पर रिलीजन को लेकर नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं, वो दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स को, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी फीलिंग्स को नुकसान, उसको हार्म करता है, उनको दुख पहुंचाता है। और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारी कोई भी बात किसी के दिल को ना दुखाए। हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमको बोलने की आज़ादी है, तो हम कोई भी जो सही नहीं है, जो गलत बात है, ऐसी कोई भी बात को कहने का हमको अधिकार नहीं है। जो स्पेशल प्रिविलेजेस की हमने बात की थी पिछले सेगमेंट में, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं ऑफिसेस में, स्कूल्स में। 1/5 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो SC ST और OBC के लोगों के लिए रिजर्व की जाती है, कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, ऑफिसेस में भी। स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरीके से रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है, ये सभी आप जानते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट
right? That is right to freedom of religion. India is a land of cultural diversity along with many religions practiced here. India is secular country. There is no state religion. All the citizens of India are free to practice and propagate their religion. No individual or community can be forcefully made to follow a religion. We can practice any religion. We can practice or we can propagate, we can promote also our religious beliefs by publicity, by advertisement, but we should take care that we should not show disrespect to other religion. So it's our freedom whether we want to follow any religion, we can follow. And you see, in our country, no one is stopped, no one is controlled, or no one is denied to practice any religion. आपको जो भी धर्म का पालन करना है आप कर सकते हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Our constitution provides free and compulsory education to all children from age 6 to 14 in a government institution. Now, how does it prove useful? On this basis, we find that compulsory education is given to the category of 6 to 14 years people, and this way we can prevent such kind of cases. You can see in this picture a boy as a child labor collecting garbage, and this is not a legal thing, it is illegal thing, it is not allowed, but because of excessive poverty in our country such cases we see. But at the same time such children must be enrolled, enlisted and given admission in government school, and they get free of cost education, they get scholarship also, they get free books, uniform, food also, and this way we can stop the future possibilities of such kind of events. जब हम इस तरीके से 6 to 14 के सारे बच्चों को कंपलसरीली एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजते हैं, और जब वो पढ़ते हैं उनके एजुकेशन के पूरा होने के बाद में उनके इस तरीके से लेबरर रहने की आशंकाएं ख़त्म होती है. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो RT के अंतर्गत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है. नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. No individual can buy or sell humans as well as any form of forced labor. Employing of children below the age of 14, that is called child labor, is a punishable act. No one can be exploited on the basis of minority, gender, religion, caste, etc. तो हमने क्या देखा कि 14 ईयर्स से भी छोटे बच्चों से कोई भी काम कराना चाइल्ड लेबर है, और उसके लिए ऐसा कोई भी करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाता है. और इस तरीके से वी प्रिवेंट चाइल्ड लेबर ऑल्सो एंड वी प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन. पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और परचेस्ड. हमारे यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ में इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता कि उनको कोई खरीदे और बेचे. पहले पुराने समय में स्लेव ट्रेड होता था, आपने देखा होगा, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था. किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के साथ में ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, वेजेस नहीं दी जाती थी, और उनसे काम कराया जाता था. कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था पहले, तो वो सब अब ख़त्म हो गया है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. We find people following different religions and speaking different languages in India. All are entitled to develop and preserve their culture. People of different communities can set up their cultural and educational institution. Our government encourages and helps in the development of these cultural activities without favoring any particular community. हर किसी को अपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट मिले हुए हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, और इसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. साथ ही अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं. आपने देखा होगा कि इंडिया में कई सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और वो अपने अपने कम्युनिटीज़ बनाते हैं, जैसे कि अग्रवाल समाज है, या ब्राह्मण समाज है, या पाटीदार समाज है, या बोहरा कम्युनिटी है. ये सब लोग अपने अपने कम्युनिटीज़ और एसोसिएशन के भी इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं और उनमें होने वाली एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, और वहाँ गवर्नमेंट किसी के साथ में भी फेवर नहीं करती या किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती. You need to find out
What incentives does the government provide to promote education in government schools? One I have shared with you. Next is right to constitutional remedies. Our constitution safeguards our fundamental rights by guaranteeing us the right to constitutional remedies. Even the government cannot violate our fundamental rights. If someone does so, the citizen of India can file a lawsuit against the violator in the court of justice and seek legal help. The court can issue an order to uphold our fundamental rights. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है ट्रीटमेंट या उसका इलाज करना। अगर मान लीजिए कोई किसी भी पर्सन का, किसी व्यक्ति का या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, उसको हार्म किया गया है, उसको छीनने की कोशिश की गई है, तो वो एक लॉ सूट मतलब कोर्ट में केस लगा सकते हैं और उसके बाद में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, केस की छानबीन करने के बाद में फंडामेंटल राइट्स को फिर से अपहोल्ड करता है, मतलब फिर से रिस्टोर करता है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। Now we will proceed to find out the two things, rules that we follow at home and the rules that we follow in school. This I am leaving for you. I am not going to let you know. You discover कि आप कौन से नियम, कौन से बातों को आप स्कूल के लिए मानते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं और घर पर कौन से और स्कूल में कौन से। सो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी बहुत बेसिक ड्यूटीज़ हैं जो हमको फॉलो करना ही चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉलोइंग ड्यूटीज़। अगर हम अपने ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमको राइट्स मिलें। द वैल्यू ऑफ राइट्स कैन बी वेल अंडरस्टूड इफ़ वी आर अवेयर ऑफ परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़। Following and abiding by our duties, we learn to become disciplined citizen of India. Here are some of our fundamental duties. अगर मान लीजिए बंटू अपनी क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी पूरी नहीं करता तो वो हमेशा टीचर से बचने की कोशिश करेगा और इसलिए उसका जो क्लास में क्वेश्चन पूछने का अधिकार है वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ड्यूटीज़ को पूरी करते हैं तो हम अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं। दूसरी बात, ड्यूटीज़ को पूरी करने पर हम एक डिसिप्लिन्ड सिटीज़न के रूप में अपने आप को तैयार करते हैं और जो डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स होते हैं उनके पास में ये पावर आता है कि वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकें। सो वी मस्ट अबाइड बाय आवर ड्यूटीज़ एंड वी मस्ट फॉलो आवर ड्यूटीज़ सो दैट वी कैन बी अ कंप्लीट सिटीजन एंड we can demand for our rights also. So first duty here, we must respect our constitution and follow the rules laid by it. जो भी constitution के rules हैं, जो भी कानून हैं, वो हमको पालन करना चाहिए। We must protect the sovereignty, integrity and unity of our nation. हमारे देश की जो sovereignty है, इसका मतलब हम खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं अपने नेशन के लिए। सिटीजन्स के ओपिनियन के बेसिस पर गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है तो उसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं, किसी फॉरेन नेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमको एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड और हारमोनियसली रहना चाहिए। हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ अनदर ड्यूटी। नेक्स्ट इज़ वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग पीस अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए कहीं भी कोई हमको दंगा फसाद या कोई भी लड़ाई झगड़े की बात को फैलाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी फेसबुक पर कम्युनिटी ने किसी ने पोस्ट कर दिया तो उससे लड़ाई झगड़े होने की नौबत आ गई, या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के बारे में कोई कमेंट कर देने से पीस और लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होता है। हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डैमेज आवर नेशनल प्रॉपर्टी। जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे किले हैं या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सड़क है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो उनको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ।
नदियों को प्रदूषण से बचाए रखना, या जंगलों को भी प्रदूषण से बचाए रखना, उनको नुकसान ना होने देना, या वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व करके रखना, या उनके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं करना। जैसे हम लोग चमड़े की चीज़ें कई बार इस्तेमाल करते हैं और वो स्मगल किया हुआ आता है, तो उनको हमको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, दिस प्रमोट्स हार्मनी इन आवर कंट्री। हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहना, मिलजुल कर प्यार से रहना। वी मस्ट बी ऑलवेज रेडी टू डिफेंड आवर नेशन फ्रॉम एनिमीज। हमेशा दुश्मन से देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना। वी मस्ट वैल्यू आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज। अपने रिच कल्चर और हेरिटेज मतलब जो हमको विरासत में मिला है, उसकी हमको वैल्यू करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगला है वी मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के भी जो अधिकार हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको मिला है, तो हमको दूसरों को भी उनकी बात कहने का समय देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। इसी तरीके से हमको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, लेकिन दूसरों की आज़ादी को ख़त्म करना ये भी गलत बात है। तो हमको दूसरों की भी फ्रीडम और दूसरों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। Now again, 2 questions for you. As a student, what are your duties towards your parents and what are your duties towards your nation? You need to mention. If we fulfill our duties wholeheartedly, it will help to strengthen our democracy and act as stepping stone towards progress and prosperity. हम सब जब अपने ड्यूटीज़ को भी पूरा करेंगे तो हम दूसरों के भी राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, साथ में हम अपने सोसाइटी के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, और हम सभी इसी तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी गेन कर सकते हैं। Now this last segment of this chapter, directive principles. The fundamental rights and duties are for the people of the country. Our constitution also contains some guidelines to be followed by the government. For the welfare of the people, according to Dr. B.R. Ambedkar, the principles known as the directive principle are the noble features of the Indian Constitution. They are to be kept in mind by the state while formulating laws. Directive principles. Word directive, that gives direction, and principles means some rules, some regulation, सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर हमारे देश की जो सरकारें हैं वो लॉ बनाती हैं, नए कानून बनाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन द इनकम एंड स्टेटस ऑफ द पीपल। तो इनइक्वालिटीज़ जो असमानता है, कहीं पर बहुत गरीब है, कहीं पर बहुत अमीर है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को खत्म करने के लिए जो गरीब हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट देना होगा, स्पेशल प्रिविलेजेस देना होगा, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, और साथ ही घर बनाने के लिए भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सरकारें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती हैं वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऐसे कानून बनाते हैं जिससे इनकम और लोगों के स्टेटस के बेसिस पर इनइक्वालिटीज़ जो है वो ख़त्म हो। स्टेटस मतलब किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी के साथ में या किसी ट्राइब के साथ में अगर कोई पहले डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो पिछड़ गए हैं, बैकवर्ड हो गए हैं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले। अगला है सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड, रोज़गार के साधन हो। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की अब तक की जितनी भी स्पीचेस हैं और इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने स्पीचेस में ये बात ज़रूर कही है कि रोज़गार के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट की कितनी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है। और ये सब होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये डायरेक्शन दिया हुआ है सरकारों को, गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आपको ऐसे कानून बनाने हैं। प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर। गरीब लोग हैं वो वकीलों का खर्चा तो नहीं उठा सकते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक होता है कोर्ट्स में, जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय किया जाता है, जिसको सर्विसेज दी जाती है, और जो गरीबों को फ्री ऑफ चार्ज जो सर्विसेज देता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, लोगों को रोजगार के अवसर दे। प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल द सिटीजन्स, और रहने के लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड, मतलब हमको पीने के पानी की ज़रूरत है, या हमको पावर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, हमको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से वो चीज़ें उपलब्ध हों। जैसे क्लीनलीनेस मेंटेन करवाना, सफाई करवाना, पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना, या हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना, या गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था करना, ये सब काम गवर्नमेंट का होता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और लोगों को उनके राइट्स के लिए जागरूक बनाने के लिए और लोगों को अपने एरिया के सारे डिसीजन लेने के लिए पंचायत ऑर्गेनाइज करवा के, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा महेश्वर में साड़ियों का या महेश्वरी क्लॉथ का वीविंग का काम होता है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में आता है और इनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है ताकि लोगों को रोज़गार मिले और इंडिया में हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, दूसरों पर डिपेंड न रहना पड़े, फॉरेन के प्रोडक्ट्स हमको यूज़ न करना पड़े। प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड OBC। ये जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, इनके साथ में SC, ST के लोगों के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न हो और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट और एजुकेशनल बेनिफिट्स ज़्यादा दिए जाएं, ताकि वो अपना अपलिफ्टमेंट का काम कर सकें, वो बैकवर्ड न रहें। कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस की तरह समझा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ये समझने की ज़रूरत है कि कंसाइंस मतलब जिसको हम कहते हैं हमारी अंतरात्मा की आवाज़। तो संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंसाइंस है, अंतरात्मा की आवाज़ जो है, वो माना जाता है। आपने देखा कि ये सारे जो बातें हैं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स के लिए होती हैं, इन गाइडलाइंस के बेसिस पर हम लोगों को एक्चुअल में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इंडियन सिटीजन्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में, फॉलो करने में सरकार की मदद करती है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है। Let us recap. Fundamental rights are the basic rights of the citizens. They help in the development of one's personality. Right to equality, right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies are our 6 fundamental rights. Fundamental duties help us to understand the value of our rights. We must respect our national symbols and heritage, and directive principles are for the government to prevent injustice to the citizens. Now dear students, hope you have understood all these 3 segments: rights, duties and directive principles. So fundamental rights, its meaning is mentioned here. You can read all these and remember these words and their spellings, and hope you will be able to solve these exercises. For any guidance you can call me, you can contact me. Thank you.